क्रमबद्ध तरीके से हर साल दारू की दुकानें बंद करते जाएंगे और कम करते करते मध्य प्रदेश को संपूर्ण नशा मुक्ति की तरफ हम ले जाएंगे। If the farmers are in a distress, women and child have been raped left, right and center over there. Crime rate is very high over there. I think he should look into those matters first. It is based on data, I can understand it. I think it is more at the moment playing to galleries. We drink, that's our criteria, that's what we decide. It will hamper tourism. People after liquor, that creates a problem for innocent people. Jordan, we look forward to that 1 or 2 days in a week where we can totally chill. And I'm sure a lot of us drink very responsibly. No, it doesn't. As long as you drink responsibly, why should it be banned? We are opening up our country to the world, saying please come, please invest, please this. And you ban liquor. Now which foreigner of the upper strata who comes does not drink? And what are you going to tell them? No, sorry, we don't have liquor. You can only have it in the 5-star. If you want to ban liquor, why don't you ban tobacco first? That is, I think, more harmful than liquor. The government of Madhya Pradesh joins the series of state governments who've decided to ban this or to ban that. And this time in their target is alcohol. It surprises us that the decision was first to ban alcohol 5 kilometers on either side of the Narmada River. We are going to try and find out during the course of the next 1 hour why the specific geographical area of the Narmada River was relevant to the consumption of alcohol. The state then says that it will go on over the course of the next couple of years to completely phase out alcohol from the entire state. This seems like a pressing and concerning issue for the Madhya Pradesh government. We are going to find out why it's so pressing. But viewers, I must share some information with you before we start talking to the Madhya Pradesh government. Here is the information. 28,000 children below the age of 5 died in Madhya Pradesh last year from malnourishment. They were not being fed, they starved to death. 28,000 children in one state. Madhya Pradesh is the most dangerous place for women in our entire country. 11 women are raped in Madhya Pradesh every day. 6 women are gang raped in Madhya Pradesh every week. Half of the victims of rape and gang rape in Madhya Pradesh are minors. They're children. It gets worse. Where are the jobs in Madhya Pradesh? The last time, the Madhya Pradesh government decided to open up positions for 14,000 police constables, for which the qualification is a 12th standard exam. 14,500 postgraduates showed up. 9,629 engineers showed up and 12 PhD holders showed up for a job application for a police constable. The same thing happened when they opened it up for the forest guard. 6 lakh people showed up. A total of 9.24 lakh candidates applied for the 14,000 police jobs that were opened up in Madhya Pradesh. So has the Madhya Pradesh government managed to create jobs? Have they managed to make their state safe at all for women and children? Have they managed to save the little babies who are starving to death? No, they have not. But they're interestingly very concerned right now about people consuming alcohol. We are going to give them right now the platform to help us understand why their concern is so pressing and why alcohol needs to be banned. Or is this just eyewash? Are they playing to the galleries? Do they want to win votes in the next election? What are they doing? We'd like to understand. Joining me on the show this evening for the ban, Rajneesh Agarwal, spokesperson of the BJP in Bhopal, Ami Yagnik, spokesperson of the Congress party, joining us from Ahmedabad. Interestingly, Ahmedabad is an interesting case study. Suneet Chopra, spokesperson of the CPIM. Swami Chakrapani is the chief of the Hindu Mahasabha and the chief of the Sant Mahasabha. We also have Shahryar Khan, he's an Islamic scholar, joining us from Bangalore. This is my Young India panel. Kunal Kamra is a stand-up comedian, Adiraj Singh, also a stand-up comedian, and Ketan Goel, representing the restaurant industry from Brewbot. I welcome all of you to this conversation. I am going to start with Rajneesh Agarwal. Rajneesh Agarwal, you heard, I can tell the statistics that I called out, they were shocking. I still haven't gotten over them. Tell me why the Madhya Pradesh government right now is so concerned with alcohol consumption when you obviously have more pressing matters that should take up your time.
I'm not sure if he can hear me. Rajneesh Agarwal, can you hear me? Yeah. Rajneesh Agarwal, why is the Madhya Pradesh government so आप क्या पूछ रहे हैं, एक बार फिर से दोहराएंगे, मैं सुन नहीं पाया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं फिर से पूछ लूंगी आपसे। रजनीश अग्रवाल जी, मुझे ये बताइए कि मैंने जो अभी आंकड़े बताए थे अपने दर्शकों को माइल नरिशमेंट के बारे में, जॉब्स के बारे में और मध्य प्रदेश के रेप स्टैटिस्टिक्स के बारे में, तो आपकी राज्य में ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं विच नीड योर इम्पोर्टेंट अटेंशन, लेकिन आपको अभी अल्कोहल से इतनी मतलब तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए, मुझे लगता है कि अल्कोहल से जिनको तकलीफ हो रही है उनकी तकलीफ जरूर आपको जाननी चाहिए, चाहे गांव में हो, छोटे टाउन में हो या मेट्रो सिटीज में हो। और जो महिलाएं आज सड़कों पर भी आ रही हैं, इसलिए उनकी तकलीफ को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने समझा है। अभी 65 जो अल्कोहल शॉप्स हैं उनको बंद किया है, जो नर्मदा रिवर के 5 किलोमीटर रेडियस में है। इसके बाद में आगे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट हैं या रिलीजियस पॉइंट्स हैं, वहां बंद करने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये तकलीफ जनता की है, ये तकलीफ इस सोसाइटी की है, इसलिए ये कर रहे हैं। बाकी जो आपने जो भी दिखाया है, मुझे लगता है कि जरूर आप कंपेयर करना चाहिए। जो 10 साल पहले का है उससे आज हम बेहतर स्थिति में हैं। यहाँ इंजीनियर भी नहीं बन रहे थे, यहाँ डॉक्टर भी नहीं बन रहे थे, यहाँ जो स्किल्ड मैन पावर की आप बात कर रहे हैं, यहाँ स्किल्ड थे ही नहीं, अनस्किल्ड लोग थे। एजुकेशन हब के रूप में आज मध्य प्रदेश बना है। तो मुझे लगता है हमने कुछ अपनी उपलब्धियां पाई हैं, आगे बढ़ रहा है मध्य प्रदेश। हम बीमारू राज्य कहे जाते थे, आज हम डेवलपिंग स्टेट हैं। आप मेरे पहले प्रश्न का जवाब दे दीजिए रजनीश अग्रवाल जी। रजनीश अग्रवाल जी, 28,000 children in Madhya Pradesh have died from malnourishment under the age of 5, and look at this statistic: 79 children below the age of 6 die every day in Madhya Pradesh. Every day 79 children die every day. तो इससे ना महिलाओं को ज्यादा तकलीफ होगी मेरे ख्याल से। आप जो कह रहे हैं ना कि अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से महिलाओं को बहुत तकलीफ होती है, जब बच्चे मरते हैं ना सर, मैं बताती हूँ, मैं महिलाओं तो महिलाओं को और ज्यादा तकलीफ होती है। आप बताइए, आप लोगों ने क्या किया है अभी तक बच्चों के लिए? आप लोगों ने क्या किया अभी तक? आपने तो मिड डे मील से अंडे हटवा दी। जी देखिए, जो प्रोटीन जरूरत है बच्चों को, जो मेल नरिश्ड बच्चे हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अब तक क्या किया है ताकि महिलाओं की जो तकलीफ है वो कम हो सके। नहीं, आप मिड डे मील के बारे में क्या कह रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मेल नरिश्ड चिल्ड्रन बच्चों के लिए क्या किया है? आपने स्कीम है वो ठीक चल रही है। दूसरी बार अब मेरा उत्तर तो सुन लीजिए, सवाल आपने किया है। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है, मध्य प्रदेश में जो रेशो 80 को क्रॉस करता था, जब हम 50 पर आए हैं, ये हमारे एफर्ट्स हैं। मध्य प्रदेश वो है जहां 4 घर के गांव हुआ करते हैं, यहां सबसे ज्यादा आदिवासी हैं, एसटी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, इसलिए उसको समझना पड़ेगा। शेड्यूल्ड ट्राइबल हैं, उनको समझना पड़ेगा। उनके वो अपने कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को अस्पताल लेके नहीं जाऊंगा, हॉस्पिटल लेके नहीं जाऊंगा। जैसा भी है, ये भगवान की देन है। उसके साथ में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को समझाना पड़ता है, उसके साथ में संघर्ष होता है, उसको बताना पड़ता है कि तुम्हारा बच्चा हॉस्पिटल जाने के लिए है, उसको ठीक करना है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आज वो ट्रेडिशन उनको अपना मानते हैं। वो मैं बच्चों की मेल नरिशमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। इन बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, ये भूखे मर रहे हैं, इनको अस्पताल की जरूरत नहीं है, इनको खाने की जरूरत है। नहीं, गलत बात है। ये बच्चों को खाना मिल रहा है, चाहे मिड डे मील का हो या आंगनबाड़ी के माध्यम से हो, तो फिर मेल नरिशमेंट, ये जो आंकड़े हैं आपके स्टेट के विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं। 28,948 children have died of malnourishment in Madhya Pradesh. तो आप मुझे क्या जवाब दे रहे हैं? आप मुझे क्या जवाब दे रहे हैं? How can you tell me, Mr. Agarwal, that it's because parents are not taking their children to hospital that the children are dying, the children are not being fed? ये 80 को क्रॉस करता था, ये डाटा। आप मेरी बात सुन नहीं रहे। मैंने कहा कि हम कुछ कर रहे हैं, तभी तो हमने सफलता पाई है। 80 से ज्यादा बच्चे मर जाते थे, उनको हमने 80 से ज्यादा बच्चे मर जाते थे, अब 79 बच्चे मर रहे हैं सर, एक कम हो गई। नहीं है, ये कुपोषण है। आप बोल रहे हो 80 से ज्यादा बच्चे मर रहे थे, अभी के आंकड़े जो है 79 है। अभी जो आंकड़ा है वो 52 का है। I want to bring in, okay, 52 का है मैडम। I'm not satisfied, but maybe I don't understand.
Maybe I don't 52 understand only. the pain of the women in Madhya Pradesh, according to the minister, the pain of the women in Madhya Pradesh when people drink, as opposed to the pain of the women in Madhya Pradesh when their children die of starvation, when 11 of them are raped every day, when there are no jobs created. What pain is worse? Ami Yagnik of the Congress party, what pain is worse? And you live in Ahmedabad. Has the ban worked in Ahmedabad? Well, I think if you see, they have been changing the policy of the Prohibition Act time and again in Gujarat. But if you see, they have not been able to seal the borders because it comes and flows and you find a number of prohibition cases in the courts because from somewhere the supply is not stopped. So you can't say that prohibition is completely implemented. But as you mentioned, in Madhya Pradesh, we also have a very high percentage of malnutrition as far as children and women go. And we have a very high crime rate as far as violence against women is also concerned. So linking the two, of course, it is a factor that alcohol consumption, if not the policy is not implemented, it doesn't lead anywhere. But to have strictly a ban and then not follow any of these other aspects where women are missing, children are missing, there is no monitoring of these midday meals, the children who go malnourished, you see the remand homes, the juvenile homes, all of them flooding with children, women languishing in Nari Grahs and Nari Kendras. If you see, I think somewhere that curbing and so that nexus which we are pinpointing that this will reduce completely, definitely it will help bringing down the violence percentage, but just that cannot be the only factor because there is no answer on malnourished children or missing children or the violence against women within the domestic homes or public spaces or even at workplaces. So to link it solely with violence against women, I think there is no complete data on this. All right, I want to bring in the younger voices on the panel right now. Kunal, I'll start with you. What is your reaction as a young citizen of this country to the ban in Madhya Pradesh on alcohol? Right, I don't know what it does. I mean, are you dealing with the addict and his addiction, or are you just inconveniencing the addict? Because it just opens another gateway for corruption, because whoever wants to find alcohol will find alcohol. And have they tried talking to people? Have they tried counseling them? Have they tried tying up with AA and other institutions like that who just specifically work in explaining people why alcohol is bad? Not have a conversation around it and ban 65 shops and then say in 2 years we'll phase alcohol out. Again, that's just a knee-jerk reaction to whatever's going on, and it won't solve anything. I think if a person who doesn't know anyone in MP or Gujarat just even travels there, I'm sure they'll be able to find alcohol. Adiraj? Well, actually, that's an interesting point he put up. So tell me this, have you ever been to Gujarat and did you have trouble sourcing alcohol when you were there? I have. I mean, I don't drink personally, but I've been there and it's been like, it's been very obvious that people there can easily arrange alcohol, and people our age, people who, come on, there's NID there, there's other institutions, where there's colleges, where there's young people, they'll drink. But educate them, counsel them to drink responsibly. It's a conversation starter. Banning alcohol is not. Adiraj, well, it does open a black market. Yes. But yes, where do you stand as a young Indian to this sort of banning that we've seen actually become quite rampant among our states? Yes, as Kunal said, banning something just sort of opens up a black market in that thing. And how much can you ban? If alcohol addiction leads to harm, so do road accidents, and like as you said, women are being raped. So should men be banned because men rape? I don't see where that could end. Start banning the things that lead to bad things. Liquor is just one thing, drugs are another. Drugs have been banned since time immemorial, but drug addiction is still a problem with the youth of the country in many of the states where liquor is banned. Nagaland, for example, has a massive drug problem, but liquor has been banned for about 3 decades there now. But I want to bring in Suneet Chopra at this point. Suneet Chopra, it's a disturbing trend right now to see these sort of bans, this sort of infringement on personal, liberty. And the thing is that the message we're getting from our governments in various states is that you don't know what's good for you. We'll decide what's good for you. We'll decide whether you can and cannot drink, because you're obviously not in a position to make that decision for yourself. This is actually the wrong approach. They are not interested really in changing
habits for the better, because then they will have counseling as the basis of their policy. They are determined to show that they are the kind of gundas who can control you and give you a law which you obey, and if you don't obey it, someone will come and strike you down. This is this whole concept of dabang. And I'm not surprised that Madhya Pradesh is also the place where the Vyapam scam took place. They have no respect for human life. They have no respect for humanity. And this alcohol ban is a clever mode because it is a real problem. I remember seeing the women of Chamoli breaking down illegal alcohol stills in their area. It was a very popular The question movement. is, if you ban all alcohol, won't the illegal alcohol stills then be encouraged to come up and mushroom across the entire state? Of course it will. Of course it will. Of course it will. Bans are no use. They are actually anti-people approaches. And they have nothing to do with governance. They have to do with telling the people, if you don't listen to me, I can make life hell for you. Rashish And Agarwal, that, respond I think, to is that. the worst form of government. Rashish It's the Agarwal, worst respond to form that. of government. देखिए मैं जो कहना चाहता हूं, ये बार बार बात हो रही है कि कैसे कंट्रोल करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी क्या, ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, ह्यूमन राइट की बात भी कह रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, क्या महिलाओं के अपने ह्यूमन राइट नहीं हुआ करते क्या गांव में महिला जो रहती है और उसका पति अगर शराब पीता है, उसका भाई शराब पीता है या उसका पिता शराब पीता है, उसके कारण उसको प्रताड़ित करता है, क्या उसके प्रति सेंसिटिव होकर कोई डिसीजन लेने की तरफ बढ़ना क्या गलत है? इसीलिए मुख्यमंत्री अग्रवाल जी, आपका कहना है कि ये जो आप लोगों ने निर्णय लिया है, ये उन्होंने कहा महिलाओं के लिए लिया है, साथ आना पड़ेगी, फैमिलीज को साथ में खड़ा होना पड़ेगा, वुमेन्स को अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगी, इसलिए सोसाइटी को भी साथ आना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। वो सोसाइटी आगे बढ़ेगी तो सरकार साथ चलेगी, ऐसा आप नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम एकदम से रातों रात डिसीजन नहीं ले रहे, हम जनता के साथ चलने के लिए तैयार। इसलिए ब्लैक मार्केटिंग नहीं करने वाले, ये भी उनका मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट है। नहीं, आपका कहना है कि ये जो आपने निर्णय लिया, ये डिसीजन लिया है, ये महिलाओं के लिए लिया है? इसका और कोई कारण है? हित में डिसीजन है ये। जो शराब पीते हैं उन पुरुषों के तो स्वास्थ्य के लिए है ही, लेकिन जो महिलाएं बड़ी तादाद में प्रभावित होती हैं उनके हित में भी है। जो जिस प्रकार से चाहे वो छेड़छाड़ की घटनाएं हो, चाहे घर में उनके परिवार के पुरुष शराब पीकर और महिलाओं को प्रताड़ित करते हो, इसलिए ये डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए समाज के पुरुष और महिलाओं दोनों को तैयार भी करना पड़ेगा। वो तैयार करने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। वो अपनी सभाओं में संकल्प दिला रहे हैं। वो बता रहे हैं कि केवल शराब बंदी नहीं, नशा मुक्ति की तरफ जाना पड़ेगा, नशा मुक्ति करना पड़ेगी, नहीं तो दूसरा कोई शराब अग्रवाल जी, हर साल तो मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ जो गांजा टूरिस्ट आते हैं आपके राज्य में, उनसे भी मुक्ति होगी। आप टूरिज्म से भी मुक्ति करेंगे? अभी टूरिज्म का क्या इंपैक्ट होगी इससे? और जो साधु गांजा लेते हैं उनका क्या? मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ कहा, देखिए हाँ बोलिए। मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ कहा है कि हम धीरे धीरे जैसे जैसे समाज तैयार होता जाएगा, हम दुकानें बंद करते जाएंगे। चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई धार्मिक स्थान हो, धर्मशाला हो, ऐसी जगहों से हम हटाएंगे। कोई स्पिरिचुअल सेंटर है, वहां से हम दुकानें हटाएंगे। उन्होंने बाकायदा ऑर्डर पास किए। मुझे लगता है इसको समझने की जरूरत है, और सोसाइटी जब साथ में आ रही है तो बीच में किसको दिक्कत है, किसको आपत्ति, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, मैं उनसे उन्हीं से पूछ रही हूँ। केतन गोयल joins us right now off Brewbot. केतन गोयल, आपको दिक्कत या आपाती है? Tell us why you sell a product that is obviously distressing women so badly, Ketan. I don't know, this doesn't make sense. I mean, liquor ban in MP again, what are they leading to? Even more unemployment. What are the guys going to do who work in these industries? Where are they going to go? I mean, you just had a beef ban, and then the government planned to do shelters for cows. What shelters are you providing to those people who are going to be unemployed? How are you going to take care of them? Where are they going to go? They're going to be on the road. What is the government going to do about this huge loss of revenue and, you know, this huge loss of unemployment? I mean, where are people going to go and work? That's an excellent question. रशीश अग्रवाल, इसका जवाब दे दीजिए। एक तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में नौकरियों की ज़रूरत है,
इससे और ज्यादा होगी बेरोजगारी। और आपके मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है, अजीब तर्क दिया जा रहा है, 8,000 करोड़ रुपए, इसका आप कहां से इंतजाम करेंगे, आप कैसे करेंगे, बताइए मुझे। देखिए अभी लगभग 6300 करोड़ है, 6300 करोड़ ओनली। तो उसको ठीक करने के लिए ही हम आगे बढ़ेंगे ना। उसके वैकल्पिक उपाय क्या हो सकते हैं हम करेंगे ना, हमारी सरकार करेगी ना। और एम्प्लॉयमेंट की बात है कि कोई उसको जो अभी कहीं काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में हैं, तो उसके लिए भी आगे बढ़ेंगे ना। उसका जो आप मुझे सोल्यूशन बता दीजिए, ये क्या बता रहे हैं आप कि आगे बढ़ेंगे करेंगे, मतलब आपके पास अभी सोल्यूशन नहीं है मिस्टर अग्रवाल। और इसकी स्टडी करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। Shahryar Khan, Rajneesh Agarwal, your answers are not satisfactory. Mr. Agarwal, your answers are not satisfactory. आप कहते रहते हैं कि हम इंतजाम करेंगे, हम स्टडी करेंगे, हम देखेंगे। Give us an answer. Give us a solution. देखिए अभी जो ये डेमोक्रेसी, बंद कर चुके हैं, 65 मेरी बात सुनिए, बंद कर चुके हैं। हाँ, लेकिन वो जो काम करते थे वो 65 शॉप्स में वो लोग कहाँ गए? उनके बीवी बच्चे क्या खा रहे हैं? उनके लिए दूसरी नौकरी के इंतजाम किए आपने कि आप अभी स्टडी करेंगे? That's exactly why they're malnourished. जरा आप सर्वे कीजिए ना, जरा सर्वे कीजिए कि वो क्या खा रहे हैं। जरा सर्वे कीजिए कि दुकान चलाने वाले लोग कौन लोग हैं और वो कौन से बिजनेस में आप चले गए। आप भी सर्वे कीजिए ना, आप भी मेहनत कीजिए। हमने पूरी सोसाइटी की मेहनत की है, 4 लोगों के रोजगार के कारण हम 4 लाख परिवारों को बर्बाद नहीं कर सकते। This sort of a decision is extremely myopic, unfortunately. Shahryar Khan, go ahead. See, this kind of a thing, you're moving away from democracy to theocracy. All theocrats, they want to ban from Saudi Arabia to, the religious people who have now come to rule India. See, this is not the answer. The ban would be maybe on overindulgence. That could be controlled in a way. Absolute banning would lead to retrenchment. It could lead to unemployment, loss of revenue. And how will these people say it's going to hit the informal sector in a big way? See, cow ban itself, it's a big hit for the informal sector, which is sustaining India's economy. 70% of India's economy lives on informal sector. By destroying this, in one aspect of the informal, they are going to hit another aspect of the informal economy, which is very bad. Another thing is the prohibition movements have failed throughout the world historically also. There was temperance movement in US. In Nordic countries, all of them, they have failed. They had to amend and bring back prohibition in a limited way or in a partial way. So here also, even as a Muslim who is a recabit, is a complete teetotaler. We seem to have lost that connection. I want to go over to Swami Chakrapani here, who joins us as well. Swami ji, आप बताइए, ये liquor ban क्यों होनी चाहिए? नहीं, आप ये देखिए, जिस शराब के कारण न सिर्फ करोड़ों लोग आज़ादी के बाद देश में मर गए, न सिर्फ करोड़ों, आप देखिए, परिवार बर्बाद हो गया। वहाँ पे जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश आज़ाद के होने के बाद सबसे पहला काम करेंगे गोरक्षा, गो हत्या बंद करेंगे और दूसरा शराब पे प्रतिबंध लगेगा। आज शराब पे प्रतिबंध का कोई मुख्यमंत्री बात कर रहा है, उस पर भी बात हो रहा है, उसको लोग खिलाफ कर रहे हैं, तो बड़ी आश्चर्य की बात है। ये सर्वे में आया है कि कितनी अपने कोर्ट से चेक कीजिए, उन्होंने कभी ये नहीं किया और ये नहीं कहा कि गौ हत्या को वो बैन करेंगे। आप प्लीज महात्मा गांधी को मिसकोट मत कीजिए, गलत फैक्ट्स मत बताइए मेरे शो पे। पहले बात अपनी रख देनी चाहिए, उसके बाद बोलिए। हर चीज एडमिनिस्ट्रेशन बैन, नहीं, अगर आप गलत फैक्ट्स बोल रहे हैं तो मुझे इंटरप्ट तो करनी पड़ेगी। रेप की घटनाओं में जो अपराधी होते हैं वो शराब पी करके किया करते थे। आपके पास रिसर्च है स्वामी जी कि हर रेप की घटना में हर अपराधी ने शराब पी रखी थी? 4 अपराधी थे, उन लोगों ने शराब पी रखी थी। सवाल इस बात का है कि शराब पीने के बाद अनेक प्रकार की घटनाएं घटती है, छेड़खानी की घटनाएं घटती है, बलात्कार की घटनाएं इसलिए घटती है क्योंकि आपकी पुलिस उनका काम नहीं कर रहा है। शराब पी करके वो बच्चों को मध्य प्रदेश की पुलिस उनका काम नहीं कर रहा है, इसलिए घटनाएं होती है, शराब की वजह से नहीं होती। अगर शिवराज जी कर रहे हैं तो बहुत ही धन्यवाद के पात्र है और बधाई देना चाहिए। शराब पे तत्काल प्रतिबंध लगने चाहिए और प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे केंद्रीय स्तर पे कानून लागू करके पूरे देश में शराबबंदी होनी चाहिए। ठीक है, आप मुझे ये बताइए स्वामी जी, ये जो 30,000 नियरली 30,000 बच्चे जो मध्य प्रदेश में पिछले 1 साल में
मैल नरिशमेंट की वजह से जो मरे थे, इसका क्या हल है? जो रोज मध्य प्रदेश में 11 औरतों की रेप होती है, इसका अल्कोहल बैन करने से ही सोल्यूशन है? सवाल इस बात का आप ये देखिए कि नौकरियों की जरूरत है अभी मध्य प्रदेश में, इसका क्या सोल्यूशन नहीं आती? दोनों मुद्दों का आपस में संबंध क्या है? दोनों इश्यूज का आपस में संबंध क्या है? आप क्यों छोड़ रहे हैं? या क्या शराब के कारण लोग लेकिन सवाल इस बात का है, क्या शराब के कारण लोगों का स्वास्थ्य खराब नहीं हो रहा है? I'm very glad, viewers. Okay, now let's bring in the rest of the panel. I'm very glad Mr. Agarwal asked me 1 second, gentlemen, 1 second. एक मिनट कि सरकार पे ठीक है, शराब पे प्रतिबंध लगा। I'm very glad that Mr. Agarwal asked me what is the connection really between, एक मिनट स्वामी जी, आप शांत हो जाइए, एक मिनट, मुझे बोलने दीजिए। I'm very glad that Mr. Agarwal asked me what is the connection between dying children, starving children, raped women, no jobs at all being created, and this sort of a liquor ban. What is the connection? I'll tell you what the connection is, Mr. Agarwal. The liquor ban is a distraction. आप लोगों को distract कर रहे हैं, ताकि न्यूज पे इस चीज की चर्चा होगी कि आपने लिकर बैन किया। इस चीज की चर्चा नहीं होगी। एक सवाल कोई नहीं पूछ रहा है कि आपने कितनी नौकरियां रेडी की है। आप लोगों ने अभी तक वो आंकड़े इंप्रूव क्यों नहीं हुए? रेप के आंकड़े इंप्रूव क्यों नहीं हुए? आप किसी से आप ये सवाल नहीं होगी आपसे कि व्हाई आर चिल्ड्रन डाइंग ऑफ मैल नरिशमेंट? यू आर डिस्ट्रैक्टिंग द पीपल। आदिराज, गो अहेड। सर, आप जैसे पहले बोले थे कि शराब पी के सेपरेट इशू है, उसको आप बताने के लिए इसको मत जोड़िए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ सर कि आप ऐसे कुछ भी मत बोलिए। शराब पीने से आप कह रहे थे कि रेप होते हैं शायद, तो पूरे देश में शायद करोड़ों लोग रोज शराब पीते हैं, करोड़ों रेप थोड़ी होते हैं रोज। शराब पीने से आदमी बदल नहीं जाता है, आदमी क्रिमिनल नहीं बन जाता है, शायद अंदर उनके जो भी है वो बाहर आ जाता है शायद। तो वो अधिकतर जो छेड़खानी की घटनाएं और रेप की घटनाएं अधिकतर आ रही है उसमें शराब पी करके लोग करते हैं। आप पूरे देश में कर दीजिए ना स्वामी जी, महिलाएं लड़कियां अग्रवाल जी, आप पूरे देश में बैन कीजिए ना, पूरे देश में बैन कीजिए, पूरे देश में बैन कीजिए, महाराष्ट्र में बैन कीजिए, आप पूरे देश में बैन कीजिए। लिकर बैन करके आपको क्या लगता है शराब नहीं मिलने वाली एमपी पे? घटनाएं जो अपराधी करते हैं, लिकर बैन करके एमपी में शराब मिलने वाला है, वो डबल रेट पे मिलेगा, वो भी ब्लैक मार्केट पे। Ami Yagnik, this is a distraction. I maintain that this is a distraction to distract people from the fact that there are no jobs, that the numbers of crime are getting worse, the fact that children are dying of malnourishment. And let me remind Mr. Agarwal, who very carefully pointed out that the children are dying in Madhya Pradesh because parents don't take them to the doctor. This is the same state where a government health officer conducted spurious sterilization camps in Madhya Pradesh, and all of those women died. 11 women died in one day because they underwent sterilization camps in a government health camp, and they died by the end of the day. I'm not surprised that they don't take their children to your spurious health camps. There has to be an improvement in your healthcare. There has to be an improvement in your midday meals program. There has to be an improvement in your police force. There has to be an improvement in your law and order situation. There has to be an improvement in your job creation. Do all of this, then we'll come back onto the show and we'll talk about banning alcohol. Do not distract us with nonsense, because this is nonsense. Ami Yagnik, go ahead. Yes, this is a very bizarre explanation they are giving, but I think the BJP comes up only with these kind of defenses. They don't have a rationale for their action or policies. When malnourishment was the issue in Gujarat as far as women were concerned, they said that the BJP statement was that they take care of their figure. That was the crude way of putting it, and they did not answer why these women in Gujarat, 45% of them are malnourished, why there are so many infant deaths, why there is so much malnourishment among small children. And so these types of answers I think only expect from BJP. Now, if the children are not taken to the doctor, it speaks a lot about your governance model. I think you come with a rationale for your ban. I understand that violence with women, of course, one of the factors is alcohol, and
one of the policies that you just can't control your police system, your authorities, but to solely pin to it, I think there has to be a nexus. But the government of Madhya Pradesh is unable to answer about Vyapam, unable to answer about what happened to the deaths of those 40 or odd witnesses, you know, apart from other accused, and what happens to these 29,000 or 30,000 children. All the parents could not take them to the doctor. I mean, I think they have to come up with an explanation. I mean, and I want to bring in Kunal here. I want to bring in all of the men on the panel. In fact, I think it's quite frankly insulting to men. I think it's quite frankly insulting to men to suggest that they will have a drink and no longer have control over themselves and automatically turn into rapists. I know plenty of men personally who have a drink on a regular basis and don't rape anybody. They don't lose their minds. Let me tell you, Mr. Agarwal, the key cause of rape, rapists, not alcohol, not whatever they're drinking, not whatever we're wearing, not where they are or what music we're listening to or what sort of Chinese food we just ate. Rapists are the main cause of rape. And rapists belong in jail. And when your law and order system completely collapses, then rapists run riot and then they commit crime. Yeah. To belittle half your population by saying that they can't control themselves after having a drink is quite frankly insulting to every man in this country. Kunal. I've heard a lot of this talk which is going on, which is guys drink, they do this, girls drink, then this is what is going to happen. The only thing that happens with drinking is hangover. Rest of the things happen because of the way the person is originally. It is just that he's drinking now. And if the question is that here we are going to ban alcohol because a lot of people are dying because of alcohol, have you had any conversation with them? Do you think that the people of this country are not worth dialogue, not worth counseling? ये भेड़ बकरी है, आप सीधा बैन कर दोगे? बात नहीं करोगे आप किससे? पूछ लो यार, कुछ बात करो, काउंसिल करो, प्रॉब्लम से डील करो, लिमिट करो चीजें. आपने ऐसी क्या चीजें ट्राई की है जो प्रीवियसली फेल हुई है, जो आपने अब डिसाइड किया कि हम अल्कोहल बैन कर देंगे, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है? ऐसा कुछ ट्राई किया है सर? पहले तो आप बता दीजिए. जवाब दे दीजिए अग्रवाल जी. They don't treat people of the country like people. They're just like ban कर देंगे. देखिए, पहली बात तो जो आप बार-बार आप कह रहे हैं कि महिलाओं के अपराध मध्य प्रदेश में ज्यादा है, मुझे लगता है आपने एनसीआरबी के आंकड़े देखे होंगे और आपको उसका जरूर डिटेल में स्टडी करना चाहिए क्योंकि 94% मैंने बोला एनसीआरबी की डेटा ही देख रही हूँ सर. ये तो नेशनल क्राइम्स ब्यूरो की डेटा है, इससे बेहतर डेटा नहीं मिलता. अपराधी नहीं है, कोई उनका प्रेमी है, कोई उनका रिश्तेदार है, कोई उनका पड़ोसी है. ऐसे लोगों के कारण ये अपराध घट रहे हैं. तो ये समाज की विकृति है. प्रशासन एफआईआर करता है, उस पर कार्रवाई करता है, अब प्रशासन के पास में मामला आता है तो. और देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है. ये सामाजिक रूप से विकृति है, इसको प्रशासन कहीं किसी प्रकार से समझौता नहीं कर रहा. दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं हमने रातों रात बैन नहीं किया है, हम किसी भी प्रकार से बैन नहीं कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के द्वारा मांग उठ रही है, गांव से मांग आ रही है. मध्य प्रदेश में महिलाएं कई जगह पर आंदोलन कर रही हैं और जहां पुनर्वास केंद्र की बात है, अस्पतालों में हम पुनर्वास केंद्र खोले हुए हैं. हम योग केंद्र तेजी के साथ में आनंद विभाग के माध्यम से खोल रहे हैं. ऐसे तमाम प्रयास भी करना पड़ेंगे, वो हम कर रहे हैं. और रातों रात हमने सारे मध्य प्रदेश में बंद कर दी, ऐसा नहीं है. स्टेप वाइज बढ़ने की बात की है सर. जो बाकी फीडबैक के आधार पर आगे बढ़ने की बात की है. पर जो बाकी दुनिया में चल रहा है, ऐसा डिसीजन नहीं ले रहे हैं. नहीं, बट आप क्या बोल रहे हैं? जो बाकी दुनिया में काउंसलिंग, कॉन्वर्सेशन, अल्कोहल बैन के बिना लोग अल्कोहलिक नहीं बन रहे, क्राइम रेट नहीं बढ़ रहा है अल्कोहल की वजह से, तो बाकी दुनिया में तो ये सही चल रहा है. और यहाँ के लोग आप बोल रहे हैं इतने खराब है कि समझते ही नहीं है कुछ और, सीधा बैन ही करना पड़ेगा. बाकी दुनिया की सोसाइटी मध्य प्रदेश जैसी सोसाइटी नहीं है. पर क्यों नहीं है? यहाँ एससी आप और उसमें एफर्ट लीजिए ना. क्यों नहीं है? कास्ट के लोग लगभग 1/3 हैं, इसको समझना पड़ेगा. सर क्यों नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश की सोसाइटी में क्या डिफरेंस है? वो जानते हैं क्या करना है. वन सेकंड, आप क्या बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश की सोसाइटी में दूसरे देशों से तुलना नहीं कर सकते ना भैया. दूसरे देशों की सोसाइटी से मध्य प्रदेश जैसे स्टेट की तुलना करोगे तो नहीं चलेगा. सर क्यों?
क्या अलग है दूसरे इसलिए देशों में? नहीं कि यहाँ जिस प्रकार के लोग कम पढ़े लोग हैं वो शराब का नशा करने में आनंद महसूस करते हैं, अपने घर की महिलाओं को मारने में आनंद मिलता है, तो वो शराब रोकना पड़ेगी। अगर कम पढ़े लिखे तो उन्हें पढ़ाई और लिखाई है ना, आप दारू क्यों बैन कर रहे हो? एजुकेशन पर खर्च ना करके वो शराब पीने में खर्च करते हैं, तो उनको रोकने का काम भी करना पड़ेगा ना। उनको काउंसलिंग भी होगी, उनको योग केंद्र में भी ले जाएंगे उनको, लेकिन शराब अगर इजीली अवेलेबल होगी तो पहले तो वो वहां भागेगा ना। सब एक साथ नहीं हो सकता। आपको कितनी कम उम्मीद है ये देश के लोगों से? सरकार उससे भाग नहीं रही, सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही है। पर सर आपको कितनी कम उम्मीद है ये देश के लोगों से? आपको बहुत कम उम्मीद है। There is enough good in people. They are all sensible. आप बात कर लीजिए मेरे हिसाब से। According to the Madhya Pradesh government, the Madhya Pradesh government believes that देश के लोगों की नब्ज पता है, आपको नहीं पता सर। सर आपको नहीं पता देश की नब्ज। आपके ख्याल से आपके मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग अपने बच्चों को डॉक्टर के पास नहीं लेते, अपनी बीवियों को मारते हैं, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। ये You have a very low opinion of your own citizens. जरा जो सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रही है उन महिलाओं से पूछिए तो, उन महिलाओं से बात करिए तो। सर मेरी एक्सटेंडेड उन महिलाओं से बात करना क्यों नहीं चाहते आप लोग? क्या गांव की महिलाओं से आपको बात करने में शर्म का आ रही है क्या? नहीं सर, ऐसे मुझे लगता है कि आपको उन महिलाओं की दुख दर्द की समझ नहीं है क्या? सर आपको क्या मुख्यमंत्री उनकी संवेदना से जुड़ता है, एक कोई मुख्यमंत्री उनके साथ चलना चाहता है तो let me bring in Shahriyar Khan. Shahriyar Khan, there are several problems with this theory. Problem number one is the fact that Gujarat is witness to the fact that when you ban alcohol, it becomes easily available. So you're not solving any of the problems that Mr. Agarwal thinks that he is solving. Problem number two is this assumption that the men of Madhya Pradesh are animals. अरे यार चुप रहो यार आप। Total ban is not at all feasible in any ways and not commercially viable. See, but poverty and alcohol together is a very potent, it's very dangerous. The gentlemen who are on the panel are mostly from, I assume, are from the urban and the rich class. But when poverty mingles with alcohol, like we see in the rural areas, it's a very dangerous thing. I believe that there has to be some kind of if you have regulation, but not absolutely no total ban, then these people should be given, wine or alcohol, whatever is less alcoholic content, and quality liquor should be supplied to them, like how they have it in the cities. The most dangerous thing is these people go and drink arak and die in hordes. That is a problem. That is the main problem. Poverty and alcohol is a very, very dangerous combination. That needs to be, put under some kind of a surveillance and regulation. Ban is definitely not the answer. That's a very good point. So actually, do you think these people actually go to a wine shop and buy alcohol? I don't think so. This is the illicit liquor which is available in those villages where they die from. Tribals have very light alcohol. Tribals have very light alcohol, but you do not allow them to produce it, and they buy this terrible stuff in plastic bags. Right. Yes, sir. You should ban that. Tribals don't have strong alcohol. No, so actually we have to understand this from Rajneesh Agarwal. The proof rating should be low. रजनीश अग्रवाल, वो लोग जो आप कह रहे हैं, जो अनपढ़ है मध्य प्रदेश में, जो गरीब है, जो अपने बीवियों को मारते हैं, जो दारू पी के उनको आनंद मिलता है, जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, एजुकेट नहीं करते, जो अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते। पहली बात तो आप इनको एजुकेट क्यों नहीं करते? दूसरी बात, वो जो दारू पी रहे हैं, कैसे अल्कोहल पी रहे हैं वो लोग? वो मतलब दुकान से खरीद के पी रहे हैं या वो स्पूरियस अल्कोहल, कंट्री अल्कोहल, एरिक पी रहे हैं? देखिए मैम, मुझे लगता है कि कई लोग जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो गांव में कभी घूमे नहीं है। कम से कम मध्य प्रदेश आइए, मेरे साथ चलिए, मैं गांव में ऐसे कस्बों में लेके चलता हूं। बहुत गांव में घूमे, आप बताइए, हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, आप बताइए ना। मध्य प्रदेश के बड़े शहर, मध्य प्रदेश बैकवर्ड है आपकी वजह से। हमारी बात तो हमें बोलने दीजिए ना, हमारी बात तो बोलने दीजिए, और उनके पास में जरा फीडबैक लीजिए कि किस प्रकार के परिवार पर उनका असर पड़ रहा है। समझने की जरूरत है। मान लीजिए कि मैं कभी गांव में गई ही नहीं हूँ, अभी बता दीजिए, समझाइए ना हमें कि वो कैसे अल्कोहल अवेलेबल है आपके गांव में। जो लोग चाहते हैं कि शराब हमारे घर में कोई ना पिए, वो गलत है क्या? अरे आप मेरे अपने सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं अग्रवाल जी। आप हमें समझाइए ना, हम शहर वाले हैं, आपने गांव में बहुत घूमे, आप बताइए ना हमें
कि ये गांव में जो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, ये कैसी शराब मिलती है वहां पे? कौन सी कंपनी की शराब मिलती है वहां पे? देखिए, जो शराब मैं तो नहीं पीता हूं, मुझे पता नहीं है कौन से कंपनी की शराब मिलती है। नहीं, आपने बहुत रिसर्च किया होगा ना सर, आपने बहुत स्टडी किया है, तो आपने तो जाके देखा होगा कि सोर्स कौन सी है, ये लोग खरीदे कितने पैसों में खरीदे। ये जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं बेच के वो शराब में अपने पैसे गवा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि कितने पैसे गवा रहे हैं वो शराब में, कितने में खरीद रहे हैं वो शराब। ये इतना तो रिसर्च किया होगा आपने। ये आप जरूर, मैं कह रहा हूं कि उनके कारण उनकी जो आर्थिक परेशानी है वो बढ़ जाती है, जो मजदूरी है वो शराब के पैसों में कई बार चली जाती है। वो वही तो मैं कह रहा हूं, जरा सर्वे करके तो देखिए गांव में, कस्बों में जाइए तो किस प्रकार से परिवार प्रभावित होते हैं। इसीलिए तो महिलाएं सड़कों पर अग्रवाल जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मुझे बार बार कह रहे हैं कि मैं सर्वे करूं, लेकिन बैन करने वाले हम नहीं, बैन करने वाले आप हैं। आपको सर्वे ऑलरेडी करनी चाहिए, आपके हाथ में ऑलरेडी रिसर्च का रिपोर्ट होनी चाहिए, आपको मालूम होनी चाहिए कि ऐसे कैसे शराब मिल रहा है, कौन सी कंपनी की शराब मिल रही है, किस साइज का बॉटल मिल रहा है, कितने पैसे गवा रहे हैं, एक बॉटल का कितना प्राइस है, वो एक दिन में कितनी बॉटल्स खरीदते हैं। जो पैसा उनके एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए, जो पैसा उनकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ाने पर खर्च होना चाहिए, वो पैसा कहीं शराब पीकर और रिसर्च किया कि नहीं किया। पैसा है, आप कौन होते हैं हमको कहने वाले कि उनका पैसा खर्च कैसे करें? सोसाइटी फीडबैक के आधार पर है। यार आप you know this is the problem I have। आप मध्य प्रदेश के रहने वाले stays in Madhya Pradesh। See, I have a very fundamental problem, viewers, with what is being said here. Let me just be very clear about this. We've asked now Mr. Agarwal several questions, and I respect the ability of or the power of a state government to make laws. They're lawmakers, but for heaven's sake, order a research report. Let's see some numbers. Let's find out, as he keeps saying, in these villages, how many people are consuming alcohol? How often are they consuming alcohol? What are the sources of the alcohol that they're consuming? How big is the bottle? Which company is it coming from? What does it cost? How dangerous is it? Is it actually cleared by the Food Safety Authority of India, or is it completely spurious? If you don't do that research, then you're making knee-jerk decisions like the one we're seeing right now, where you are not able to give us the research. Show us that you're doing your job. Do the research. You are the lawmakers. Nobody is arguing with you. I want to see that you've done your homework before you've made a decision. It seems to me right now that you have not done your homework. You've just woken up one morning and decided that this might be a good thing to do. Francis is on the phone line from Bangalore. Francis, go ahead. I just want to ask this gentleman, what exactly, after banning, what exactly he is expecting from the youth? What is he expecting from the youth? This gentleman who is talking about ban, he does not even know what is the price of the liquor. What is he talking about the ban? Exactly. Mr. अग्रवाल जी, ये प्रश्न आपके लिए था। उनका कहना है कि ये जो आप शराब का बैन करेंगे, इस बैन के बाद आपको मध्य प्रदेश की युवाओं से क्या उम्मीद है? देखिए, एक बात तो आप में पहले भी मैंने कहा, मैं बार बार कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने इसके अध्ययन के लिए सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक तौर पर ये कैसे सक्सेस हो सकता है और क्या उसके कारण हैं, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, सरकार ने इसके अध्ययन दल बनाए हैं, सरकारी अधिकारी इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए बार बार आप जो कह रहे हैं कि बिना जाने समझे कोई हम डिसीजन ले रहे हैं, हमने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। हम डिसीजन लेने तरफ वाले हैं और निश्चित रूप से लेंगे, क्योंकि जनता का फीडबैक ऐसा है। लेकिन एक स्टडी के साथ में, एक सर्वे के साथ में, फीडबैक के साथ में लेंगे, चाहे वो यूथ हो, चाहे वुमेन हो या बाकी समाज के दूसरे लोग हों, उन सबसे हम फीडबैक के आधार पर आगे बढ़ने वाले हैं। हम अचानक से डिसीजन नहीं लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री के पास में जिस प्रकार का फीडबैक आया, उन्होंने वही बात दोहराई है और ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। मैंने कहा आपसे कि आप अगर ये समझाइए कि नर्मदा नदी के आजू बाजू 5 किलोमीटर आपने शॉप्स क्यों बंद किए? इसका क्या रीजन है? नर्मदा की जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसमें? देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि बिल्कुल
हाँ, ये इसका ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस तो ये है कि ये लाइफलाइन मध्य प्रदेश की कहा जाता है। दूसरी इसके लेके धार्मिक आस्था भी है। इसको बहुत लोग स्नान करने आते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं वो नहाने यहाँ आते हैं, वहाँ कई प्रकार की पूजाएं, वहाँ उपासना करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से शराब पीने वालों के कारण वो प्रभावित होते हैं, परेशान होते हैं, उनकी आस्थाओं को कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है, इसलिए वो दुकानें 5 किलोमीटर के आसपास बंद की गई। ये लगातार मांग वहां की थी, जिसको मुख्यमंत्री ने मानते हुए नर्मदा सेवा यात्रा जो चल रही है उस दौरान ये बात पूरी की है, मांग पूरी की है। So, but I just have one question, sir. आपको थोड़ा एडिक्शन पे थोड़ा आप लोग और काम करेंगे रिसर्च वाइज, बिकॉज मैंने जितना भी पढ़ा एडिक्शन के बारे में, पर्सनालिटी एडिक्शन प्रो होती है कि लोग वैसे होते हैं वो कोई भी चीज से एडिक्ट हो जाते हैं, चाहे वो दारू हो। लेट्स ब्रिंग इन स्वामी चक्रपाणी। स्वामी जी आप बताइए, ये जो नर्मदा के बगल की जो 5 किलोमीटर की दूरी में सारे दुकानें बंद किया गया, इस बात से आप सहमत हैं? और वो इसका स्टडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, जो भी जरूरत होगी वो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना कि अचानक कोई सनक की आवाज नहीं आ रही, दोबारा पूछिए ना। सपने में आया, सुबह डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं होने वाला है। नहीं, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा सर। ये 5 किलोमीटर का फंडा क्या है सर? 6 किलोमीटर में मिलेगा दारू? नहीं, वो मोरालिटी का लाइन होगा, एक कल्चर का। वो 5 में नहीं मिल रहा, मैं तो 6 में जाकर ले आ सकता हूँ ना। 5 किलोमीटर का फंडा ये है जो नहीं एक मिनट, नो भैया सुनेंगे क्या? Let me just bring in स्वामी चक्रपाणी। स्वामी जी आप मुझे ये बताइए कि 5 किलोमीटर की दूरी में जो अभी दुकानें बंद किए गए, इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत है, या बंद करनी चाहिए। और पूरी निश्चित रूप से जो सरकारें कर रही है समाज हित में कर रही है, और समाज हित में जो भी होगा, चूंकि देखिए आज महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, वो जानती है कि उससे पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। और ये आज से नहीं, काफी समय से चलता आ रहा है। देखो, जो लोग बैठ करके बात कर देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो गरीब है उस पर मार पड़ता है। एक गरीब है जो मजदूरी करके कमाता है और उसके बाद वो जाकर के शराब पीता है और घर के लोगों को, बच्चों को पीटता है, वो रोटी नहीं मिल पाता समय से, दूध नहीं मिल पाता बच्चे को। तो निश्चित रूप से शराब एक बहुत बड़ी अभिशाप है, और ये हमें लगता है कि इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं होगा कि जो सरकारें उससे प्रतिबंध लगाए और जनता के कहने पे लगा रही। सबसे बड़ी बात की जनता कह रही है, सरकार अपनी इच्छा से नहीं कर रही है। सरकारें तो अभी तक चला ही रही थी, और अभी तक की सरकारें जितनी भी थी वो चला रही थी, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है और आवाज उठने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि अब इसको किसी भी कीमत पे देश के लोग, महिलाएं, बच्चे या बुजुर्ग या कोई भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। एक स्वस्थ समाज को एक स्थापना करना है। आज पूरे विश्व ने योग स्वीकार कर लिया। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर, इन सारे शहर, इन सारे राज्यों में भी बैन करनी चाहिए। इन सारे राज्यों में भी बैन करनी चाहिए। महाराष्ट्र में, गोवा में बिल्कुल करनी चाहिए। अब धीरे धीरे वहां के लोग जैसे जैसे जागरूक होंगे वो मांग करेंगे, लोगों की मांग पे सरकारें करेंगी। लोगों से ही लोकतंत्र में सरकार बनता है। तो जब लोग कहेंगे तो निश्चित रूप से वहां के लोग करेंगे तो प्रतिबंध लगेगा। So Swami Chakrapani believes that Chhattisgarh, Maharashtra, Goa, Manipur, all of these states that have similar governments run by the Bharatiya Janata Party should actually move forward and ban alcohol entirely. That's slightly worrying. Yeah. Tourists would come to India to do what? Yoga? They do. They do. That's the only reason why tourists come here. बट सर, पर आप एडिक्शन से डील नहीं कर रहे ना। जिस मैं बोल रहा हूँ, जो पर्सनालिटी एडिक्शन प्रो होती है ना, जो समझो दारू के एडिक्शन में घुस गया ना, वो इसलिए दारू काफी लोग पीते हैं, एडिक्ट कुछ लोग होते हैं। वो कुछ लोग क्यों एडिक्ट होते हैं, उसका इलाज कर आदमी ना टबैको से लेकर दांत घसने का भी एडिक्शन आता है बंदों में, बिकॉज़ उनकी पर्सनालिटी वैसे एडिक्ट है। इलाज के लिए अस्पतालों में हम डॉक्टर्स बिठा रहे हैं, उसके इलाज के लिए हम जो उसको जानने वाले हैं उनको हम बिठा रहे हैं। वो पहले बिठाना चाहिए था, ये 5 किलोमीटर करने से पहले करेंगे कैसे दूर कर सकते हैं, ये हम और आप नहीं बता सकते। मुझे नहीं पता आप एक्सपर्ट है कि नहीं है, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो उसको जानने वाला है वो उसको बताने वाला है। सर, पहले उनको बताना चाहिए, फिर ये 5 किलोमीटर वाला, और फिर बोल के अगले 2 साल में फेज आउट कर देंगे दारू। पहले रिसर्च ऑन एडिक्शन, क्यों लोग एडिक्ट होते हैं, क्या पर्सनालिटी। मैंने फंडा बताया आपको, आपने शायद सुना नहीं होगा। हाँ, फिर से बता दीजिए। आपको बहुत क्लियर कहा। 5 किलोमीटर का अगर फंडा आप जानना चाहते तो मैंने बहुत क्लियर कहा है। राइट, फिर से बता दीजिए अग्रवाल जी। सुना नहीं दिया सर।
देखिए, मैंने कहा आपसे कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में आस्था का केंद्र है। लोग यहाँ कई बार स्नान करने आते हैं, अपनी पूजा करने आते हैं, कई प्रकार की उपासनाएं करते हैं। नर्मदा जी का वैदिक महत्व है, धार्मिक महत्व है। यहाँ हर पूर्णिमा को, अमावस्या को स्थान स्थान पर मेले लगते हैं। तो लेकिन जो शराब की दुकानों के कारण पास में जो शराब मिलती है, वहां लोग शराब पीकर हुड़दंग करते हैं, उपद्रव करते हैं, श्रद्धालुओं को परेशान करते हैं और वो वहां का जो माहौल है, जो धार्मिक माहौल है, उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए लगातार ये गांव से, ये घाट जहां नदी के हैं, वहां से मांग उठ रही थी कि इसको आप बैन करिए, ताकि लोग यहां दारू पीकर, शराब पीकर यहीं बैठ के उपद्रव ना करें, हुड़दंग ना करें। इसलिए कोशिश सरकार ने की है। समझ गए 5 किलोमीटर श्रद्धालुओं की मांग थी, आस्था रखने वालों की मांग थी। नहीं, पर 6 किलोमीटर में करे तो चलेगा। घर जाके उपद्रव करें। अभी वही सेम बंदा अगर 5 किलोमीटर में आप बैन कर दिया, आपने 6 किलोमीटर में जाके वो दारू लिया है, तो उसका क्या? तो आप अग्रवाल जी, क्या आप होली के दिन भांग बंद करेंगे? भांग बैन करेंगे आप होली के दिन? होली के दिन आप भांग बैन करेंगे? देखिए, चाहे भांग हो, गांजा हो या दूसरे प्रकार के नशे हो, उनके लिए सरकार ने अपने प्रोविजन किए हुए हैं और निश्चित रूप से जहां सरकार कर सकती है, मैंने कहा, इसलिए हम केवल शराबबंदी की बात नहीं कर रहे, हम नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, केवल शराब मुक्त नहीं, क्योंकि कई प्रकार के नशे हैं जो लोग करते हैं, कई प्रकार की दवाइयां हैं जो उनका बेजा इस्तेमाल करते हैं, कई प्रकार की ऐसी दूसरी चीजें हैं जिनका बेजा इस्तेमाल करके लोग नशा करते हैं, उनको भी जागरूक करके रोकने की जरूरत है। मिस्टर अग्रवाल, मिस्टर आशीष अग्रवाल, आप मध्य प्रदेश को रेप मुक्त भी कर दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल करेंगे। कौन चाहता है मैडम कि रेप हो उनके प्रदेश में? कौन सरकार चाहती है? और उसको रोकने के प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा आपसे, आप एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, 94% उनके अपने लोगों के माध्यम से रेप हो रहे हैं। वो जानने की समझने की जरूरत है। इसका मतलब क्या है अग्रवाल जी? इसका मतलब क्या है? अपने घर के लोग अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर का कोई रोल नहीं है इसमें? हमारा बिल पास होने वाला है। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि अगर कोई बलात्कार करता है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, और आने वाले विधानसभा के सत्र में वो एक्ट लेकर आने वाले हैं। That's good. I'll tell you why that's not good. Because only less than 20% of the cases that are actually written out and actually FIR filed are reach conviction. Because the investigations are poor, because the actual case is poor, and because it never actually sees a conviction in the court, and the victims are normally threatened to take their cases back. So yes, we appreciate the fact that the Chief Minister of Maharashtra has said that he will give the death punishment for someone who is convicted of rape, but I would like to see more convictions, a stronger law and order system, a stronger police system, a system where women feel comfortable coming forward and actually complaining. There are some stark, raving problems in Madhya Pradesh right now if children are dying because they're not being fed in the same state that has removed boiled eggs from the midday meal because it considers itself a vegetarian state. Boiled eggs that those children desperately need, that is protein that they need, that they will die without. But the state has put its vegetarianism ahead of their lives. Let me remind you, the number of women who are raped in Madhya Pradesh every day, it is the worst place for a woman in this country. Worst place. And these are all state and government numbers. There are no jobs in this state. There are pressing problems. When you ban alcohol, you just distract people. Maybe if the police weren't busy shouting. Don't distract people. We're watching. We're looking at the numbers. And the answers of hum dekhenge, hum pahunchenge, hum check karenge, not good enough. Show me the research paper. Show me the experts who suggested this. Show me the people who went into the villages and actually did the research and spoke to these people. That should be documented research within the government of Madhya Pradesh, which it is not. Give us the data. Do better. Thanks for watching.